Hello students, we are conquering MCQ based on case scenario. So this case scenario is from CA Final RTP May 2024. And this case scenario is based on different Ind AS like 27, 28, 109, 110 and 115. So let us see data given in this scenario. So we are given that HS Limited is a car manufacturing company. During the year, HSL has entered into many transactions details which are given below. तो इसमें आपको टोटल 4 ट्रांजेक्शन्स दी हैं और उसके बेस पे डिफरेंट MCQs हैं. So let us see number 1 transaction is with the intention to expand HSL has entered into a share purchase agreement which is SPA with the shareholders of FM Limited to purchase 30% stake in FM Limited as on 1st June 2002 at a price of rupees 30 per share. So as per terms of SPA, HSL has an option to purchase additional 25% stake in FM Limited on or before 15th June at a price of rupees 30 per share. Similarly, the selling shareholders had an option to sell additional 25% stake in FM Limited on or before 15 June to HSL at a price of rupees 30 per share. The decisions on relevant activities of FM Limited are made in annual general meeting, extraordinary general meeting, and a resolution in AGM or EGM is passed when more than 50% votes are cast in favor of the resolution. And further it is given that an AGM or EGM can be called by giving at least 21 days advance notice to all shareholders. तो अब ये जो सिचुएशन है इसके वजह से फिर आपको डिफरेंट MCQ हैं. Number 1 MCQ there asking with respect to SPA anchored by HSL determine the date when HSL gained control over FM Limited. तो आपको डिटरमिन करनी है व्हाट इज द डेट ऑफ कंट्रोल. तो इसी के बेस पर एक सेकंड MCQ है with more acquisitions at the end of the year. HSL had investments in 2 subsidiaries, 3 associates and 1 joint venture. So we have to determine how they will be valued in financial statements. तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1. तो फर्स्ट सिनेरियो में आपको ये मेंशन किया है जो HSL कंपनी है तो इसने एक्वायर किए हैं कुछ शेयर्स ऑफ FM लिमिटेड. सो HSL तो हैज शेयर्स ऑफ FM लिमिटेड एंड इट इज आल्सो मेंशन दैट तो आपने एंटर किया है एक शेयर परचेज एग्रीमेंट टू बाय 30% स्टेक एज ऑन 1st जून. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन दैट तो आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है एज ऑन 1st जून. तो दिस इज 2002 एंड दिस इज शेयर परचेज एग्रीमेंट. So HSL has entered into agreement with shareholders of SM Limited share purchase agreement to buy 30% stake. And further it is also given that as per terms of HSL has option to purchase additional 25% stake. और प्लस एक आपके पास है ऑप्शन to buy 25% stake. This is also in FM Limited and इसका जो आपके पास ऑप्शन है so this option is available as on 15th June. It means as on 15th June you can buy further 25%. And further it is also given that shareholders also have option to sell this 25% stake. और जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं they also have option to sell this 25% stake at the rate of rupees 30. Price here is also at the rate of rupees 30 per share. And further it is given that the decisions जो भी होंगे अब आपके related to this company that will be taken in AGM और EGM और उसके लिए and with more than 50% votes in favor and उसके लिए आपको 21 days का notice देना पड़ेगा. And it is also given decisions so can be taken in AGM or EGM and more than 50% approval and by giving a notice of 21 days. अब आपको MCQ नंबर 1 देखो मेंशन किया है. In MCQ number 1 they are asking with respect to share purchase agreement entered by HSL determine the date when HSL gained control. तो
तो आपने देखना है कि किस गेट को HSL को कंट्रोल मिल रहा है ऑफ FM लिमिटेड। मीन्स आपको डिटरमिन करनी है गेट ऑफ कंट्रोल। तो अब देखिए 1 जून को आपने बाई किए हैं 30% और कंट्रोल के लिए आपको चाहिए मोर देन 50% एंड प्लस आपके पास एक ऑप्शन है विच इज 25%। तो ऑप्शन हम कब लेते हैं व्हेन इन्वेस्टर हैज करंट एबिलिटी टू एक्सरसाइज बैक ऑप्शन। तो इट मीन्स आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन कभी एक्सरसाइज होगा जब ये फेवरेबल होगा। अब चेक करके हैं तो ये ऑप्शन को अवेलेबल है 15 जून को आप बाई कर सकते हैं। तो क्या उस डेट को आपको या एज ऑन 1 जून क्या आपके पास मोर देन 50% राइट है? यस वी कैन राइट डेट एज ऑन 1 जून वी हैव 30% स्टेक फ्रॉम शेयर परचेज एग्रीमेंट और प्लस आपके पास है 25% फ्रॉम ऑप्शंस बिकॉज दीज ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज। अब आप किस डेट को एक्सरसाइज कर सकते हैं 15 जून को। अब आप देखिए कि जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं क्या वो आपकी जो प्रपोजल है वो आपके पास 55% है जो पावर लेकिन इट विल बी पॉसिबल। अब देखिए आपको मीटिंग करनी है AGM या EGM उसके लिए आपको 21 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। तो इवन इफ नोटिस इज गिवन ऑन 1 जून इट मीन्स मीटिंग कैन बी हेल्ड ऑन 22 जून। तो उस डेट से पहले जो आपकी कंपनी है HSL उसके पास पावर है दैट ऑन 15 जून दे कैन टेक द डिसीजन। इट मीन्स वी कैन से दैट our gate of control will be taken as 1 जून। जिस दिन आपने शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन कर लिया है प्लस आपके पास करंट एबिलिटी है टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज ऑफ दिस FM लिमिटेड। तो आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। सो देयर फॉर 1 जून 2002 will be considered as gate of control. So now you can see which option is correct. So answer will be option number A. So next we have MCQ number 2. In this case we are given that with more acquisition at the end of the year HSL has investment in 2 subsidiaries. अब HSL के पास investments हैं। HSL has investments number 1 in 2 subsidiaries and further we have investment in 3 associates। तो 3 associate companies हैं आपकी and then it is given 1 joint venture। And they are asking so at what value these investments can be disclosed in financial statements। different options हैं। नंबर 1 है all of them should be valued at cost। सेकंड ऑप्शन आपको मेंशन की है ऑप्शन को अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर यूजिंग इक्विटी मेथड एंड इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एट कॉस्ट। थर्ड ऑप्शन है को वैल्यू ईच इन्वेस्टमेंट ईदर एट कॉस्ट और एट पर इंड AS 109। और आपके पास फोर्थ ऑप्शन है ईदर एट कॉस्ट और एट पर इंड AS 109 एंड दिस ऑप्शन इज अवेलेबल सेपरेटली। तो आप देखिए बेसिक रूल क्या है जब आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं डिफरेंट सब्सिडीज में एसोसिएट में जॉइंट वेंचर में देन एज पर तो इंड AS 27। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको आप वैल्यू कर सकते हैं एट कॉस्ट और एज पर इंड AS 109। इंड AS 109 कहता है एज पर फेयर वैल्यू एंड दिस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज सेपरेटली फॉर सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। तो लेके से बाकी रूल इन्वेस्टमेंट्स so these can be valued so at cost और you can value और at fair value या फिर आप इनको फेयर वैल्यू के बेस पर वैल्यू कर सकते हैं विच इज एट पर इंड AS 109 एंड दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन होगी कॉस्ट और फेयर वैल्यू एंड दिस ऑप्शन तो कैन बी एक्सरसाइज सेपरेटली। तो ये आपको ऑप्शन मिलती है सेपरेटली नोट फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो इट मीन्स ईच कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इट मीन्स आप सब्सिडरी को मेजर कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस पर एसोसिएट को मेजर कर सकते हैं एज पर फेयर वैल्यू एंड सिमिलरली जॉइंट वेंचर को वैल्यू कर सकते हैं एज फेयर वैल्यू। इट मीन्स आप डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं बट फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इट मीन्स 3 एसोसिएट हैं तो तीनों एसोसिएट के लिए एक एसोसिएट के लिए यदि आपने ऑप्शन ली है फेयर वैल्यू फिर सभी एसोसिएट को हमने वैल्यू करना है तो फेयर वैल्यू। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो आंसर विल बी करेक्ट ऑप्शन है आपकी इसमें ऑप्शन नंबर D।
Again we have second part, इसमें देखिए आपको मेंशन किया है during the year HSL issued compulsorily convertible debentures on a private placement basis for rupees 100 lakhs. Each CCD is convertible into 5 shares agreed to 4 years from the date of issue and an annual interest is payable at the rate of 6% per annum. But at initial recognition, HSL recognized a liability component of a compound instrument of rupees 20,79,063. HSL also incurred expenses of rupees 2 lakhs in connection with the issue of instrument. Nature of expense includes fees payable to legal advisors, registration and regulatory fees. तो आपको देखो पहले मेंशन किया है कि आपने करंट ईयर में आपने इशू किए हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. This HSL company has issued compulsorily convertible debentures of रुपीज 100 lakhs और इसकी लाइफ आपको मेंशन की है 4 ईयर्स और ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके इक्विटी में. अब आपको फर्दर मेंशन किया है इसकी जो वैल्यू, इसका जो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट की जबर 6%, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%. अब जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें एक को हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज अवर कन्वर्टिबल डिबेंचर पोर्शन और एक है आपका इक्विटी कंपोनेंट. अब इसकी वैल्यू हमें मेंशन की है, जो कन्वर्टिबल डिबेंचर की वैल्यू है जिसे गिवन 20,79,063. तो इट मीन्स पहले को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बल्कि इक्विटी कंपोनेंट, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 100 लाख माइनस दिस मच. तो दिस विल बी अवर 937, दिस इज 79,20,937. अब आपको ये भी मेंशन किया है क्योंकि सीसी के लिए आपने इशू किए हैं, इसमें आपके कुछ इशू एक्सपेंसेस हैं, इशू कोस्ट्स दैट इज रुपीज 2 lakhs. तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको हमने अपोर्शन करना है इन दोनों कंपोनेंट्स में. तो इक्विटी का जो पोर्शन बनेगा आपका वो इक्विटी में से माइनस हो जाएगा और कन्वर्टिबल डिबेंचर का पोर्शन इसमें से माइनस हो जाएगा. इसको मीन्स इसको आप इस रेशो में डिवाइड कीजिए पहले. तो ये जो इशू कॉस्ट है रुपीज 2 lakhs, इसको इस रेशो में आपने डिवाइड करना है. तो जैसे जो बिकमिंग 2 lakhs टोटल देखो बन जाएगा 100 lakhs. तो दिस वन इज अवर 2079, तो 063 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, तो दिस इज कमिंग 41, तो 581. और इस तरीके से बैलेंस रह जाएगा आपका माइनस दिस इज 2 lakhs, जिसमें 158,419. अब जब आपने सीडी में से माइनस कर लिया है तो उसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसमें हम इंटरेस्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. तो इट मीन्स ये जो अमाउंट है आपका 41518, तो ये आपका अमोर्टाइज हो जाएगा फ्यूचर में. सो एज इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि फ्यूचर में जब आप सीडी के ऊपर इंटरेस्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो भी इसका इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है या मार्केट रेट, तो उसके थ्रू ये हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी कन्वर्टिबल डिबेंचर में. तो इसमें सर अब आपका ट्रीटमेंट क्या है, आपने टोटल जो इशू कॉस्ट है उसको पोर्शन करना है दोनों में, और जो सीडी की कॉस्ट है वो आपकी थ्रू इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी एडजस्ट हो जाएगी. नाउ लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए हैं. नंबर 1, एंटायर 2 lakhs शैल बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस इन P&L, दिस इज इनकरेक्ट. एंटायर 2 lakhs शैल बी रिड्यूस फ्रॉम इक्विटी, तो ये भी रॉन्ग है आपका. सी ऑप्शन है, अब प्रोपोर्शन ऑफ 158,419 शैल बी रिड्यूस फ्रॉम इक्विटी विच इज दिस वन, एंड 41,581 शैल बी रिकॉग्नाइज एज इंटरेस्ट कॉस्ट ओवर पीरियड ऑफ 4 years यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड. तो ये हमारा ट्रीटमेंट करेक्ट है. तो इट मीन्स अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Then we have third equation. We are given HSL acquired 40% stake in NM Limited as at 1st January 2022 for rupees 8 lakhs and classified investment in NM Limited as an associate as at 1st January. This is 2000 or 2022. The carrying amount and fair value plant and equipment is 3 lakh and 5 lakh respectively, with remaining useful life of 5 years exactly 20 quarters. तो सबसे पहले देखो आपको मेंशन किया है, सो एज ऑन 1st January ऑफ दिस ईयर, so this HSL company, so it has acquired so 40% stake in NM, 40% stake in NM Limited. तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपको मेंशन की है. कॉस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज गिवन ₹8 lakhs. जिस मोर देन 20% को इसको हमने क्लासीफाई कर दिया एज ए एसोसिएट,
एंड एज ऑन दिस डेट एक आपकी प्लांट मशीनरी है तो जिसकी आपको कॉस्ट दे रखी है या बुक वैल्यू वी कैन से कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू, तो जिससे गिवन 3 lakhs और इसकी फेयर वैल्यू है आपके पास 5 lakh। तो इट मीन्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं एसोसिएट में तो आपने इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जो डिफरेंस होगा वो गुडविल या आपके कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट हो जाएगा। फिर आता है आपका पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। फिर आपको मेंशन किया है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च जिस इज सेम ईयर एनएम लिमिटेड जनरेटेड प्रॉफिट। अब आपको मेंशन किया है अप टू 31 मार्च 2000 तो एनएम को प्रॉफिट हो रहा है, सो देयर इज प्रॉफिट सो विच इज अर्न बाय दिस कंपनी एनएम लिमिटेड। तो एसोसिएट में रूल होता है कि हम इक्विटी मेथड अप्लाई करके हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा एसोसिएट कंपनी का उसमें जितना शेयर बनेगा आपका जो परचेजिंग कंपनी है होल्डिंग कंपनी है उसका शेयर आपने एडजस्ट करना है अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में। तो लेट से बाकी प्रॉफिट ये आपको मेंशन किया है 50,000। अब जो एनएम कंपनी है वो कोई कैलकुलेशन चार्ज कर रही है अपनी ओरिजिनल बुक वैल्यू के ऊपर, पर अब आपने इसको रिवैल्यू कर दिया फेयर वैल्यू। इट मीन्स अब आपको इस जो आपका डिफरेंस है इंक्रीज हो रही है फेयर वैल्यू उसके ऊपर एडिशनल कैलकुलेशन भी मिलेगी, तो वो हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी माइनस एडिशनल कैलकुलेशन फॉर हाउ मच टाइम पीरियड दिस इज ओनली 1 क्वार्टर। तो दिस इज इक्वल टू जो आपका इंक्रीज है फेयर वैल्यू में ₹2 lakhs तो उसको डिवाइड कर दीजिए। अब इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ आपको दी है एज ऑन दिस डेट 5 ईयर और इसकी लाइफ है 20 क्वार्टर से, ये बन रहा है आपका सिंगल क्वार्टर, तो इसको 20 क्वार्टर से आप डिवाइड कीजिए। तो इट मीन दिस विल बी 10,000। सो वी कैन से क्या कि एडिशनल प्रॉफिट जो है एनएम कंपनी का फॉर दिस क्वार्टर दिस इज 40,000। अब इसमें कितना शेयर है आपका एचएसएल का, दिस इज 40%, इसका कर दीजिए 40%, दिस इज कमिंग 16,000। तो ये आपका ऐड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में, तो उसकी देखो ये एंट्री बन जाती है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू पीएनएल। तो अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है और ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में बाय दिस अमाउंट 16,000। इट मीन नाउ व्हाट विल बी अवर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट विच इज एनएम लिमिटेड। दिस इज एज पर इक्विटी मेथड, वी फॉलो इक्विटी मेथड। उसमें देखो आपका जो इंड एएस अप्लाई हो रहा है ये है अब आपका इंड एएस 28 विच डील्स विद इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। सो दिस वैल्यू विल बी अवर जितनी कॉस्ट थी आपकी 1 लाख से और उसमें प्लस कर लीजिए आप 16,000 का शेयर, तो टोटल वैल्यू विल बी नाउ 816,000। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो लेट अस सी नाउ विच ऑप्शन is correct in this case। तो दिस अवर फोर्थ MCQ है आपका, at what amount HSL shall carry its investment in NM Limited in its consolidated financial statement on 31st March। So answer will be 816, which is option number C। So correct option is C। Next we have fourth situation। So while selling a car, HSL provides a credit discount of 1% on sale price which is mentioned on the invoice। तो कंपनी एक कार सेल कर रही है तो उसमें हम क्रेडिट डिस्काउंट दे रहे हैं। HSL प्रोवाइड्स ए क्रेडिट पीरियड टू 7 days to customers however if paid upfront then HSL gives so an additional cash discount 2%। तो देखिए स्पॉट पेमेंट करके हैं तो आपको 2% डिस्काउंट दे रहे हैं कैश में। एंड HSL also provides a voucher worth ₹500 with a validity of 1 year which can be used at an apparel store। तो देखो आपने कार सेल की है उसमें क्रेडिट डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट है और एक वोचर है आपका। नाउ देयर आस्किंग, अब आप देखिए MCQ है नंबर 5। तो देयर आस्किंग हाउ शुड HSL अकाउंट फॉर क्रेडिट डिस्काउंट कैश डिस्काउंट एंड वोचर गिवन टू कस्टमर ऑन सेल ऑफ कार। तो किसी कार के जो कॉन्सिगरेशन पेबल टू कस्टमर जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं जो आप वोचर दे रहे हैं उसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू। तो देखो आपको मेंशन किया है HSL ने कार सेल की है कि सोल्ड कार और उसमें आपके कुछ इंसेंटिव्स हैं टू कस्टमर्स। नंबर 1 इंसेंटिव है आपका 1% क्रेडिट डिस्काउंट। सेकेंड इंसेंटिव हम दे रहे हैं 2% कैश डिस्काउंट एंड दिस इज फॉर सपोर्ट पेमेंट। अगर भाई नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है आपका 7 days और प्लस एक हम दे रहे हैं वोचर ऑफ ₹500 की वोचर। And with the help of this, customer can buy goods at an apparel store।
तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि ये जो भी इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं कस्टमर को, ये शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू। ये अपने रेवेन्यू में से माइनस करने हैं। इट मीन्स ओनली नेट रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन अवर बुक्स। तो अब देखते हैं, देखो डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है क्रेडिट डिस्काउंट शैल बी रिड्यूस्ड, हाउएवर कैश डिस्काउंट के वैल्यू वोचर शैल बी चार्ज एज एक्सपेंस है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। क्रेडिट डिस्काउंट के कैश डिस्काउंट बोथ शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम क्या रेवेन्यू, हाउएवर वोचर शैल बी चार्ज एज एक्सपेंस। थर्ड है डिस्काउंट क्रेडिट एंड कैश एंड वोचर शैल बी चार्ज एज एक्सपेंस, तीनों को एक्सपेंस ही शो करेंगे हम। नंबर बी है क्रेडिट डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के वैल्यू वोचर शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम रेवेन्यू। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, नंबर बी, क्योंकि आपने इनको डिडक्ट करना है रेवेन्यू में से, तो रेवेन्यू को रिड्यूस करना है, इनको आपने सेपरेट एक्सपेंस शो नहीं करना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। So in this lecture we discussed a scenario based on different Ind AS like 27, 28, 109, 110 and 115 from CA Final RTP of May 2024. फर्दर टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन फर्दर लेक्चर्स। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।